اور اہم اور تازہ اپڈیٹ دیں آپ کو، کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے سندھ بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن کا اہم مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ حتمی فیصلے کے لیے یہ اجلاس جاری تھا۔ اس سے پہلے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں بے یقینی قائم تھی، لیکن اب الیکشن کمیشن کی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کل کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ نوشین یوسف نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوشین، بالآخر فیصلہ ہو گیا ہے، کل ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات؟ جی بالکل، ذرائع الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کل ہی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کراچی اور حیدرآباد میں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے آج ایک اجلاس کیا جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی اور اسلام آباد اور چیف الیکشن کمشنر خود بھی شریک تھے، ممبران شریک تھے، اور اس اجلاس میں جو سندھ حکومت کی جانب سے درخواست کی گئی تھی الیکشن ملتوی کرنے کی، ان ساری معاملات کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ہی سندھ میں شیڈیول کے مطابق ہی بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اور ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن میں یہ بتایا گیا کہ خدشات پر الیکشن ملتوی کریں گے تو پھر کبھی الیکشن ہم ملتوی نہیں، الیکشن کا انعقاد نہیں کرا سکیں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی اس حوالے سے فول پروف بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ہی الیکشن کا جو ہے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوگا کراچی اور دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں۔ جی صحیح۔ اور جو خط لکھا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے، 2 دفعہ درخواست کی گئی تھی کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے جائیں کراچی اور حیدرآباد میں، اس بارے میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے، کیا جواب دیا گیا ہے سندھ حکومت کو؟ بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ذرائع بتا رہے ہیں انہوں نے اس خط کا جائزہ لیا الیکشن کمیشن کو جو حکومت سندھ کی جانب سے لکھا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کی جو تمام تر تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسی طرح رینجرز اور ایف سی کی جو طلبی کا معاملہ فرنٹیئر کنسٹیبلری کے لیے جو ہے کہہ دیا ہے انہوں نے وزارت داخلہ نے کہ وہ تعینات کرنے کے لیے آپس میں مشاورت کے ذریعے الیکشن کمیشن سندھ حکومت جو ہے وہ تعینات کر دے۔ ایف سی جو فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے وہ حساس پولنگ اسٹیشن پہ، جبکہ اس کے علاوہ کل جو ایک لیٹر کے ذریعے وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ 500 کے قریب جو بلدیاتی انتخابات کے لیے 500 کے قریب جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے باہر رینجرز کی جو ڈپلائمنٹ کی جا سکتی ہے۔ گو کے فوج کی تعیناتی کے حوالے سے معذرت کی گئی تھی، لیکن جو رینجرز ہیں ان کی تعیناتی کے لیے بات کی گئی تھی، جس کے بعد آج جو اجلاس ہوا اس میں سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد کہا گیا کہ جو فول پروف انتظامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کل ہی الیکشن جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا نوشین، دادو میں سندھ حکومت کی جانب سے سیلاب جو ہے وہ وجہ بتائی گئی تھی کہ سیلابی پانی کھڑا ہے، تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، اس کا کیا بنا؟ بالکل، اس حوالے سے بھی ایک جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں انہوں نے دورہ کیا تھا اس علاقے کا، اور انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں وہ بالکل سازگار ہیں کہ وہاں پر بلدیاتی انتخابات کرائے جا سکتے ہیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے کہ جو سندھ اور جو اضلاع ہیں جہاں پر الیکشن نہیں ہوئے تو دوسرے مرحلے کے ان سارے علاقوں میں جو ہے کل ہی بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے، یعنی کہ کل حیدرآباد، کراچی اور جو ڈویژن سے جہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے جن جگہوں پر، وہاں پر اب کا دوسرے مرحلے میں کل بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ صحیح، یعنی آپ یہ بتا رہی ہیں کہ کراچی، حیدرآباد کے ساتھ ساتھ دادو میں بھی بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے؟ جی بالکل، جو جتنی بھی جگہیں ہیں جہاں پر بلدیاتی انتخابات ہونے تھے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سارے علاقوں میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کل ہی مقررہ شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے۔ جی نوشین، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ ذرائع الیکشن کمیشن سے یہ خبر آ گئی ہے کہ کراچی، حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے اور دادو میں بھی کل ہی بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اس طرح سے پورے سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے اس حوالے سے کل ہی انعقاد ہونے جا رہے ہیں انتخابات کا۔ سندھ بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن نے اہم مشاورتی اجلاس کیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پورے سندھ میں کل ہی بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اس سے پہلے سندھ حکومت نے صوبائی الیکشن کمشنر کو یہ خط لکھا تھا کہ کراچی ڈویژن اور ضلع حیدرآباد میں کل ہونے والے انتخابات ملتوی کرنے کی ان کی جانب سے درخواست کی گئی تھی، اور سندھ حکومت کا موقف یہی تھا کہ سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا ہے، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہونے تک بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جائیں، اور الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس جاری تھا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے سندھ میں بلدیاتی انتخابات جو ہے اس کا دوسرا مرحلہ، اس کا انعقاد کل ہی ہوگا۔ کل اہم اور بڑا سیاسی دن، سیاسی دنگل سجے گا۔
कराची के 7 और हैदराबाद के 9 डिविजन्स में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे और दादू में भी बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। अजला में ये आपको बता रहे हैं कि कराची के 7 अजला और हैदराबाद के 9 अजला में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हो गया है। ये अहम फैसला किया गया है। हतमी फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था और आपको ये भी बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था और कहा था कि कराची डिवीज़न और ज़िला हैदराबाद में कल होने वाले इंतखाबात मुलतवी करने की फिर से दरख्वास्त की गई थी और इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के इस इजलास में सिंध हुकूमत के ख़त का जायज़ा लिया गया। उसके बाद हतमी फैसला ये किया गया है कि कराची, हैदराबाद, दादू और तमाम बाकी अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हो गया है। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से खबर आ गई है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास था और इस इजलास में फैसला किया गया है कि कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। कराची के 7 अजला जबकि हैदराबाद के 9 अजला में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे। आज हमने देखा कि अभी तक, अब से कुछ देर पहले तक, 1 बजे से पहले तक बेयकीनी कायम थी वोटर्स में, सपोर्टर्स में, उम्मीदवारों में कि क्या कल बल्दियाती इंतखाबात होते हैं कराची में और हैदराबाद में या नहीं। आज इसका ये हतमी फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया था और ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि कराची डिवीज़न और ज़िला हैदराबाद में कल होने वाले इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ये दरख्वास्त की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से। ख़त में सिंध हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो भी आपको बताएं। कहा गया था, वजूहात ये बताई गई थी कि सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होने तक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। जिसके बाद इस इजलास में सिंध हुकूमत के ख़त का जायज़ा लिया गया और ये गुफ्तगू हुई, ये बात की गई कि इस तरह तो कभी भी बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद नहीं हो सकेगा। अभी ताज़ा और अहम डेवलपमेंट, कल का दिन इंतहाई अहम होगा जब कल बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद होगा। कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। कराची के 7 अजला, हैदराबाद के 9 अजला में कांटे का मुकाबला होगा। अब देखना यह है कि किस तरह से सियासी जमातें अपने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को इकट्ठा करती हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और यकीनी तौर पर कल एक अहम और बड़ा सियासी दिन है जहां पर इतवार को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। कराची डिवीज़न के 7 और हैदराबाद डिवीज़न के 9 अजला में और दादू में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इससे पहले पोलिंग के सामान की तरसील इन इलाकों में जारी थी और तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। किरण खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। किरण, अब जब ये फैसला हो गया है कि कल ही पूरे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का इनकाद होगा, तो तैयारियों के हवाले से बताएं। यकीनन जो एक बेयकीनी की सूरत हाल थी अब ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मशावरती इजलास जारी था वो ख़त्म हुआ है, जिसमें फैसला किया गया है कि कल ही जो है वो कराची और हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ अजला के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाए गए थे जहाँ से इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जो है वो भी जारी है। तमाम पोलिंग अमले को सामान जो है वो दिया जा रहा है और कल शेड्यूल के मुताबिक जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद डिवीजन में होंगे। सिंध हुकूमत ने जो खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उस पर जो है उसका जायजा लिया गया तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए, और इलेक्शन कमीशन ने हिदायत भी की है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए जाएं। ताहम सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त थी कि इलेक्शन मुलतवी हो, उसको मुस्तरद कर दिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के तर्जुमान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कल इंतखाबात इजलास में फैसला किया गया है कि कल कराची में होने वाले इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। जी सही। और इस बारे में अब सिंध हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने आया है या सिंध हुकूमत को कोई जवाब दिया गया है? जो ख़त लिखा गया था, 2 बार दरख्वास्त की गई सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को, इस बारे में क्या कोई डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी तो ये इजलास में जो फैसला है अब से कुछ मिनट पहले जो है वो सामने आया है, जिसके बाद अब स्ट्रेटजी जो है सिंध हुकूमत की जानिब से क्या होती है इस पर भी सोच विचार किया जाएगा। उसके साथ साथ MKM पाकिस्तान राब्ता कमेटी ने अपना इजलास जो है वो भी बुलाया हुआ है, जिसमें ओवरऑल सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि MKM ने गुज़िश्ता रोज जो है वो इस बात पर अपने ऑप्शंस का इजहार कर दिया था कि अगर बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती हल्का बंदियां दुरुस्त कराए बगैर होते हैं अपने मुकर्ररा वक्त पर,
तो फिर MQM हुकूमत से अलगगी का ऐलान भी कर सकती है, जिसके बाद आला सतह पर जो है वो राब्ते भी हुए थे MQM से, और उसके बाद कहा उनको श्योरिटी दी गई थी, यकीन दहानी कराई गई थी कि MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। ताहम अब जो इलेक्शन कमीशन का दोबारा फैसला आया है उसके बाद सूरत हाल अक्सर जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है। यही बात किरण जो आप बात भी कर रही हैं कि यकीन दहानियां कराई गई थी MQM को, और MQM ने जिस तरह धमकियां भी दी थी कि हम वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे, अब तो ये फैसला हो गया कि कल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो अब MQM का अगला लाहेमल क्या हो सकता है? इस बारे में इजलास भी होना है आज, क्या एक्सपेक्टेड है फिर? जी बिल्कुल, MQM की जानिब से शदीद रद्द अमल का जरूर इजहार किया जाएगा, क्योंकि कल वजीर आजम की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी। MQM के मामलात जो हैं उसको तय करने का कहा गया था, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का कहा गया था, लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ रहा है उससे सूरत हाल थोड़ी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आज के इजलास के बाद जो है MQM ने अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान भी करना है, और इस पर मुख्तलिफ ऑप्शन पे जो गौर MQM कर रही थी, या तो वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करे या वो फिर से जो वफाकी हुकूमत है उससे अलहदा हो जाए। इन तमाम तर चीज़ों का जायजा लिया जाएगा राब्ता कमेटी के इजलास में, क्योंकि जब भी हमारी MQM के रहनुमाओं से बात हुई उनका यही कहना था कि उन्हें जो है वो यकीन दहानी कराई गई है कि मामलात हल हो जाएंगे। ताहम अब जो बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी यानी कल होने जा रहे हैं, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना लाएअमल बनाएगी और उसका ऐलान भी आज मुतवक्का है। जबकि आज जो उन्होंने PIB में KMC ग्राउंड में अपने जनरल वर्कर इजलास बुलाया था उसको भी कल मुलतवी किया गया था, जब वजीर आजम से इनकी टेलीफोन पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात हुई थी, जिसके बाद उसे भी मुलतवी किया गया। ताहम अब सूरत हाल तब्दील हो रही है और MQM की जानिब से जो है लाएअमल का ऐलान होगा राब्ता कमेटी के इजलास के बाद। जी ठीक है किरण, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, अब जब ये फैसला हो गया है कि कल ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे कराची में और हैदराबाद में भी, तो क्या MQM का मुतवक्के रद्द-ए-अमल हो सकता है? और अब गोमगो की सूरत हाल से चूंकि सूरत हाल निकल आई है, तो क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं तो अभी ये कहूंगा कि अभी गोमगो की सूरत हाल से अभी भी नहीं निकले हैं। इलेक्शन कमीशन ने बेशक ये फैसला दिया है, लेकिन कल से इस बात के इम्कानात थे कि इलेक्शन कमीशन से ऐसा कोई फैसला दोबारा भी आ सकता है, जब ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से दोबारा दरख्वास्त की गई थी। अभी भी ये समझा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गवर्नर के पास आईनी इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दें। तो अभी भी सिचुएशन जो है वो 50-50 ही है। MQM बज़ाहिर जो है वो ज़ाहिर है इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, इन हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, तो उसका स्टांस तो अभी तक ये है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपना जो है इजलास बुलाया है, उस इजलास में जो है वो यकीनन कोई ना कोई फैसला जरूर करेंगे। ये फैसला जो है वो बाइकआउट का भी हो सकता है, और जैसे कि कल उन्होंने ये इशारा भी दिया था कि वो वफाकी हुकूमत से अलग हो सकते हैं, वो PDM से अलग हो सकते हैं। तो यकीनन ये चीजें जो है बहुत ज्यादा कराची के इंतखाबात के ऊपर जो है वो इन्हिसार है इन तमाम चीजों का, इन सारी तब्दीलियों का। तो अजीब इस वक्त सिचुएशन है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कल इलेक्शन होंगे, अभी भी जो है वो एक सवालिया निशान मौजूद है। कल जब तक जो है वो कल का सूरज तुलू नहीं होता और कल जो है वो इलेक्शन की बाकायदा इंतजामात के मुताबिक जो है कल शाम 5 बजे ही हम कह सकेंगे कि इलेक्शन हो गए, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि ज़ाहिर है इंतखाबात की तरसील तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो स्टाफ है वो स्टाफ जो है कल पोलिंग स्टेशन पर पहुंचता है नहीं पहुंचता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जाती, ये अभी तक सारे सवालात जो है वो मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के सतह पर जो है वो इंतजामात मुकम्मल है, सामान उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है उन पर पहुंच चुका है, पोलिंग स्टेशन तक भी उन्होंने तरसील जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन देखना यही है कि अभी MQM और गवर्नर और PDM मिलकर जो है वो क्या फैसला करते हैं आज शाम तक। फ़हीम, जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं और आपने बताया कि गवर्नर के पास इख्तियार है बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का, और यकीनी तौर पर गवर्नर सिंध का अब रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। अब ये बताइए कि सिंध हुकूमत के पास मज़ीद क्या क्या ऑप्शंस हैं कल बल्दियाती इंतखाबात ना हों, बल्दियाती इंतखाबात को डिले करने के लिए? देखिए, बज़ाहिर तो ये जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद में इंतखाबात करा दी जाए, लेकिन अगले दिन नहीं हुए, बिल्कुल इसी तरह का जो है गवर्नमेंट कोई भी एक्शन कर सकती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट तरीन वो यही है कि जितना भी पोलिंग का स्टाफ होता है वो सिंध गवर्नमेंट फराहम करती है, वो स्टाफ को अगर जो है वो सिंध गवर्नमेंट चाहे कि वो पोलिंग स्टेशन पर ना पहुंचे तो ये एक मुमकिन सूरत हाल बन सकती है। सिक्योरिटी की सिचुएशन क्योंकि जाहिर है IG सिंध भी कह चुके हैं कि नहीं होने चाहिए इलेक्शन, तो उसके हिसाब से अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती तो भी जो एक सिचुएशन हो सकती है।
क्रिएट करने की बात है कि अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से सिचुएशन को टैगल करती है और किस तरह से कल इलेक्शन को अपनी इत्तेहादी जमात के मुतालबे के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं कराती, ये अब जो है सिंध गवर्नमेंट के पास कई वो मौजूद है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो यही है कि गवर्नर सिंध अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 60 दिन के लिए 90 दिन के लिए जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर दें। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर गवर्नर सिंध जो सिंध गवर्नमेंट ने बल्दियाती हल्का बंदियों को नोटिफिकेशन वापस लिया है उसको बुनियाद बनाते हुए कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि फिर सिचुएशन जो है वो जीरो पर होगी। यानी अब तक जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो इलेक्शन होने जा रहे हैं जो हल्का बंदियां हो चुकी हैं उनके तहत, और उन्हीं के तहत जो हल्के तकसीम हुए थे, जो यूसीज बनी थी, उनके ऊपर जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए थे उनकी बुनियाद पर होने जा रही हैं। अगर नोटिफिकेशन को बुनियाद बना के कोई ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है तो फिर सिचुएशन यही होगी जो एमकेएम का भी मुतालबा है कि फिर नॉमिनेशन से दोबारा से मामला शुरू होंगे। फिर ये नहीं होगा कि जनाब 26 जुलाई को पिछले साल जो इलेक्शन होने थे उसमें सब कुछ हो चुका था, सिर्फ पोलिंग डे बाकी था और अब पोलिंग डे के लिए 60 दिन या 90 दिन आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं, अब सिचुएशन जो है वो फिर जीरो से शुरू होगी, सारी चीजें जो नॉमिनेशन फॉर्म। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पॉइंट जीरो पे सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा फहीम साहब, ये भी कहिएगा कि विफाकी हुकूमत के कायम रहने के लिए बल्दियाती इंतखाबात का होना कितना जरूरी है, क्योंकि एमकेएम तो ये कह चुकी है कि विफाकी हुकूमत से निकल जाएगी अगर होंगे, तो अगर निकलती है एमकेएम तो फिर तो खतरे की घंटी होगी विफाकी हुकूमत के लिए। डेफिनेटली 7 अहम कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं एमक्यूएम के पास और ये 7 नशिस्तें बहुत अहम हैं कौमी असम्बली में। वजीर आजम के इंतखाब को कौमी हुकूमत को वफाकी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए अगर तो एमकेएम जो है वो हुकूमत से निकलती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मसला जो है वो खड़ा हो सकता है वफाक में पीडीएम के लिए। इसीलिए आपने कल देखा कि जब एमकेएम का इजलास जारी था और एमकेएम की जानिब से ये चीजें आ रही थी कि उन्होंने अपने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए हैं, तो फिर आसिफ जरदारी ने फोन किया, मौलाना फजल रहमान ने फोन किया, शहबाज शरीफ ने फोन किया, तो चीजें जो है वो डेफिनेटली वहां पर भी नोटिस की जा रही है कि अगर एमकेएम निकलती है इंतखाब से इत्तेहाद से तो सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, सिचुएशन खराब हो सकती है। वहीम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हमने माजी में भी देखा कि एमक्यूएम की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाता रहा है, धमकियां भी दी जाती रहीं और विफाकी हुकूमत से निकलने की भी बातें की जाती रही, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं एमक्यूएम को वापस मना लिया जाता है। इस दफ़ा एमक्यूएम, हमने पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, एमक्यूएम कितनी मुत्तहिद लग रही है आपको? अगर कल बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या एमक्यूएम के पास विफाकी हुकूमत से अलग होने के अलावा भी कोई प्लान बी है? लेकिन दूसरा प्लान तो वो यही है कि वो बाइकआउट कर दें इलेक्शन का, क्योंकि बाइकआउट के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। अगर मौजूदा हल्का बंदियों के ऊपर एमकेएम इलेक्शन में जाती है और जो सिचुएशन है इस वक्त एमकेएम की कि वो अभी अभी इंजमाम से निकली है, इंजमाम में शामिल हुई है, तो इंजमाम के मरहले से निकली है, तो उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो इलेक्शन में जो है कोई विन पोजीशन में आ सके, क्योंकि सिचुएशन इस वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमकेएम को इस बात का वक्त नहीं मिला है। अगर हम मौजूदा हल्का बंदियों के ऊपर भी मानते हुए एमकेएम को इलेक्शन में जाने का सोच लें कि वो इलेक्शन में जाती है, तो उनके पास इस बात का वक्त नहीं है कि इस वक्त जो बैलेट पेपर छप चुके हैं, तो बैलेट पेपर के ऊपर एमकेएम के कैंडिडेट्स के भी नाम है, जो पीएसपी थी उसके कैंडिडेट्स के भी नाम है, जो डॉक्टर फारूक सत्तार ने उम्मीदवार खड़े किए थे उनके भी नाम होंगे। तो वोटर को ये समझाना कि इतने मुख्तसर वक्त में कि ये फलां शख्स जो है कल बेशक पीएसपी में था लेकिन ये आज हमारा मुतफिका उम्मीदवार है, या फलां शख्स कल डॉक्टर फारूक सत्तार को नॉमिनेटेड था लेकिन आज ही हमारा मुतफिका उम्मीदवार है, ये बहुत मुश्किल होगा। तो कंफ्यूजन जो है वो वोटर के लिए, एमकेएम के वोटर के लिए बहुत ज्यादा होगी और इस सारी सूरत हाल का जो है फायदा जो है वो यकीनन दूसरे जो सियासी हरीफ है उन्हें मिलेगा। अच्छा फहीम साहब, ऑर्डिनेंस को डिले करने की वजह क्या है? ऑर्डिनेंस तो जारी किया जा सकता है, अगर ऑर्डिनेंस ही तरीका है इस मामले को डिले करने का तो गवर्नर भी अपना है, फिर ऑर्डिनेंस के डिले की वजह? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट के जरिए चाह रही थी ये पीडीएम के एक मामला जो है इलेक्शन कमीशन तक चला जाए और जो भी तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं आईनी, उनको इख्तियार करके जो है वो सिंध गवर्नमेंट के जरिए जो है वो इलेक्शन मुलतवी करा लिए जाए। इसीलिए बार बार जो है वो खतूत जो है वो भेजे जा रहे थे। जो ब्रीफिंग्स हो रही थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सदारत में कल इजलास हुआ, उसमें भी जो है वाईजी सिंध ने यही बात कही थी कि सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी नहीं है, हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा इलेक्शन कराना। तो अभी तक ये कोशिश थी कि सिंध गवर्नमेंट के लेवल से जो है इलेक्शन कमीशन को ये पैगाम जाए और उनसे कहा जाए, दरखास्त की जाए कि ना वो इलेक्शन मुलतवी कर दे। अब चूंकि वो सारी चीजें हो चुकी हैं तो अब आके जो है वो गवर्नर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी 50-50 है कि कल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। यानी गवर्नर कभी भी ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं कि कल बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। कुछ देर पहले हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ हमें इजलास का अहवाल बता रही थी फ़हीम, और वो कही थी कि जो बात हुई है इलेक्शन कमीशन इजलास में, उन्होंने कहा है कि अगर ये तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात या मसाइल सामने जो रखे हैं सिंध हुकूमत ने 2 बार अपने ख़त में,
वो तो फिर कभी भी इस तरह बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकता। तो ये कितने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो इलेक्शन कमीशन इजलास में बात हुई है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो ये कोशिश कर रही है कि वो जवाब तराशे, और डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ठीक भी है, लेकिन एक बात हमें जरूर देखनी पड़ेगी कि इस वक्त भी अगर हम दादू के अलावा बात करते हैं, सिर्फ दादू को छोड़ के बाकी जो इलाका है सिंध का, जहाँ हैदराबाद के कन्नौज जिला में इलेक्शन होना है, वहाँ पर सूरत हाल वाकई बेहतर है, लेकिन दादू में यकीनन सैलाब की सिचुएशन है, सिक्योरिटी एक इशू है। देखें, अभी जो हमने हालिया जो इंतखाबात हुए थे ज़िमनी, उनमें हमने ये देखा था कि जमातें जो हैं वो एक दूसरे से जो है उनका दरमियान तसादुम हुआ था। मुस्तफा कमाल जो है वो गोली लगने से जख्मी हुए थे, कई मुकामात पर जो है सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई थी। तो एक सिचुएशन तो है जिसको बेस बना के सिंध गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इलेक्शन जो है वो किसी तरह से मुलतवी हो जाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो स्टांस है वो भी काफी हद तक ठीक है कि ये सिचुएशन तो हमेशा से मुल्क में रही है और हमेशा से इसी सूरत हाल में इलेक्शन होते रहे हैं। तो अब जो है वो आखिरी वो यही है। देखिए, इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये भी है कि इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन के आर्टिकल 219 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए वो तमाम इकदाम उठाएं जो वो जरूरी समझते हैं, और इसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन हमेशा जो है मुख्तलिफ किस्म के इकदाम उठाता है, जिसमें सर फहरिस्त ये होता है कि जनाब जब भी इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद जब ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं तो उन्हें जो है मुलतवी करार देता है इलेक्शन कमीशन। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने हैं और इनको सामने रख के जो हम यही कह सकते हैं अभी भी 50-50। और एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि अगर गवर्नर की तरफ से ऑर्डिनेंस आ जाता है और कल बल्दियाती इंतखाबात, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी भी 50-50 सिचुएशन है, अगर कल मुलतवी हो जाते हैं गवर्नर के ऑर्डिनेंस आने से, तो फिर एक बहुत अहम सवाल ये भी है फिर कब तक बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होते रहेंगे? जो बात मैंने यही कहा था, मैंने थोड़े पहले एक बात कही थी कि गवर्नर जो है वो 60 दिन के लिए या 90 दिन के लिए जो है वो इलेक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इलेक्शन बढ़ाए भी गए, ऑर्डिनेंस कोई आता भी है तो वो 60 दिन के लिए होंगे, और फिर सिचुएशन यही होगी कि बल्दियाती हल्का बंदियों का क्योंकि नोटिफिकेशन वापस लिया जा चुका है तो डेफिनेटली जो है वो फिर नॉमिनेशन से जो है वो बात शुरू होगी। तो डेफिनेटली अभी जो है वो चीजें जो है, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये बात भी कही जा रही है कि 90 दिन के बाद जो है वो पंजाब में इलेक्शन करा दिए जाए, तो डेफिनेटली 90 दिन का मामला यहाँ से तो नहीं आएगा बल्दियाती इंतखाबात के मामले को लेकर। यहाँ से उम्मीद है कि 60 डेज के अगर कोई ऑर्डिनेंस आता भी है तो 60 डेज के हवाले से ही आएगा। फ़हीम साहब, यही बात कि अगर 60 से 90 दिन का टाइम होता है और एमकेएम का तो जैसे एक ही मुतालबा है, वो कह रहे हैं कि हल्का बंदियां जो है वो तब्दील की जाए और उसके बाद जब चाहें इलेक्शन करा लें, तो 60 से 90 दिन में ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेटली हल्का बंदियों के जब नोटिफिकेशन वापस होगा तो ये होगा कि हम 2015 का जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, हम उन हल्का बंदियों के ऊपर जाकर खड़े हो जाएंगे, और वो हल्का बंदियां जो है वो एमकेएम को सूट करती हैं। मैं इसकी सिर्फ मिसाल इस तरह से दे दूं कि जो जिला बस्ती है जहां से जो एमकेएम का अक्सरियती इलाका है, 2015 में एमकेएम ने यहाँ से जो 51 यूसीज थी तमाम की तमाम वो जीती थी। उस वक्त इस हल्के की आबादी जो है वो 20 लाख थी, लेकिन 2017 की मरदमशुमारी के नतीजे में इस हल्के की आबादी बढ़कर जो है वो 27 लाख हुई, लेकिन यूसीज की तादाद जो है वो कम करके 51 से 45 कर दी गई। इसी तरह की चीजें एमकेएम कहती है कि दीगर जगहों पर भी हुई है, जिसकी वजह से ये हल्का बंदियां जो है उन्हें सूट नहीं करती। लेकिन अगर जो है 2015 की हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन करा दिए जाएं तो डेफिनेटली जो है एमकेएम उस इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। सही। फ़हीम, हमारे नाज़रीन के लिए एक बार फिर ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा इस रेफरेंस को, जो इख्तियार है इस वक्त गवर्नर के पास मुलतवी करने का बल्दियाती इंतखाबात को 60 दिन या 90 दिन के लिए, क्योंकि अब और ये भी कंफर्म कर दीजिएगा कि कितनी देर पहले तक, क्योंकि अब तो 18 से भी कम घंटे रह गए हैं बल्दियाती इंतखाबात अगर इजलास के फैसले के मुताबिक चलें, तो कब तक एक्सपेक्ट किया जाए कि गवर्नर ये इख्तियार इस्तेमाल कर लेंगे? और एलैबोरेट कीजिए। देखिए, रात 12 बजे तक जो है किसी भी वक्त जो है ये सब कुछ किया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। गवर्नर सिंध का ये इख्तियार, आईनी इख्तियार उनके पास मौजूद है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले के बाद भी जो है वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी करें। ठीक है, फ़हीम अहमद सिद्दीकी आपसे इस बारे में बात करेंगे।